The body cried. They called her heron nest. How does she have a flat chest? She is dark. Her skin is hairy. Her back is heavy, isn't it? Oh, she is fat. They call her a bamboo. She is too tall. She is too short. Why? Don't you think she is very thin? The body cried and said, Please stop. It hurts me. I am more than just a piece of flesh. Poem by Avanti Ganesh. We live in a world where being too tall, short, thin, fat is deemed to be unacceptable by the society. Body shaming is not frequently discussed, but it has a long-lasting detrimental effect on the victim. The media nowadays acts as a catalyst and a promoter of such behavior and attitudes. Since there is a constant display of how perfection is being perceived by the society, it's more than just being physically attractive. But there are major side effects of this as well, as low self-esteem, negative impression on oneself, and a low level of self-confidence and of appearance-based anxiety. So we here, through Awaz, wholeheartedly would want to bring awareness of how body shaming has affected people, and we will be talking about this topic in detail ahead. परफेक्ट निखार कैसे मिलेगा जानना चाहोगे? परफेक्ट निखार पाने के लिए यूज कीजिए फेयर एंड लवली, जो आपकी स्किन के अंदर जाके डार्क सेल्स को रोशन कर दे और आपको दे ग्लोइंग निखार। क्या आप भी इस जान में फंस गए क्या यार? Some of the ways in which brands manipulate people and make them feel insecure about themselves and make them wear something inherently wrong, but that's not the case. These are some of the ways of toxic body shaming cultures. But and also it is normal, people think it's normal for them to body shame other people, but they do not understand the severity and the intensity which goes through the other person's life. When you urge to comment on someone's body, think twice, think 10 times, but don't do it, because you might end up in being in someone's mind forever. You might lower his own self-esteem. You might also make him feel unhappy under his own skin. And you might let someone to trip over the edge of an edge. You might also make someone restrict on what he will be doing next, or wearing an evening outfit, for an example. Now, let's go for an interview which we will be going and seeing the real life examples which they have gone through. I'm here with Mr. Vishal from Happy Foundation. So first, thank you Mr. Vishal for letting us conduct this interview with you and giving us your valuable time. We would like you to tell our viewers regarding your foundation, about the contribution, aim, whatever you will do for the society a bit. ओके सो हैप्पी फाउंडेशन जो है हमने 3 साल पहले चालू किया था लगभग, और उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो हम कैरी आउट करते जा रहे हैं। खासकर वुमेंस के लिए PCOD PCOS लेक्चर हो गया, ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप हो गया, और वेरियस एक्टिविटीज़ जो हमारे एंड से हो सके वुमेंस के लिए। ये हम क्वेश्चन में चालू करते हैं, आपको हम थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे बॉडी शेमिंग के ऊपर। आप आपके व्यूज़ हमको बता दीजिएगा। श्योर। इज इट नॉर्मल कि जो टीनेजर्स हो वो अपने बॉडी को लेकर थोड़े इनसिक्योर फील करें या वैसा कुछ? येस, इट इज़ नॉर्मल, बिकॉज जो एक कलर कॉम्प्लेक्शन का रहता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन रहना चाहिए और फिटनेस रहना चाहिए बॉडी में, वही कहीं ना कहीं टीनेजर्स में आजकल देखा जा रहा है। मतलब खूबसूरती जो बॉडी की वो कलर कॉम्प्लेक्शन से और बॉडी जो हमारा फिजिकली फिट है कि नहीं उससे देखा जाता है, ना कि अंदर से हम कैसे है, हमारा हार्ट कैसा, वो सब देख के ना हम कहीं ना कहीं पूरा कलर कॉम्प्लेक्शन पे और बॉडी फिटनेस पे वो ध्यान देते हैं। सपोज अगर टीनेजर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आपको उनको रेकमेंड करते थेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए, और उनके लिए डील कर सकते हैं ऐसे में? तो जैसे कि हम थेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो टीनेजर्स है आज के टाइम पे वो बहुत सारा जो इश्यूज है वो फेस कर रही है ड्यू टू बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग एक रिसेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है अब। पहले इतना हम बॉडी शेमिंग पे ध्यान नहीं देते, वो टॉपिक का नाम बॉडी शेमिंग है ये भी कितने लोगों को पता नहीं था। अब पता चल रहा है कि बॉडी शेमिंग करके भी एक टॉपिक रहता है। तो फिजिशियन जो रहते हैं लाइक हमारे जो थेरेपिस्ट डॉक्टर्स वगैरह जो रहते हैं इस पे, हाँ, तो वो फिज़िकली फिट कैसे रह सकते हैं हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर कोई कोई डॉक्टर तो अभी फेयरनेस क्रीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गलत है। हमें जिस तरह से वही तरीके से हमें खुद को एक्सेप्ट कहीं ना कहीं करना चाहिए। मतलब जो नेगेटिविटी है हमारे में
वो हमें कहीं ना कहीं निकालनी चाहिए। और कंसल्टेंसी के बात हो गया, जो कंसल्टेंट्स रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो टीनेजर है उसके इसमें किस तरीके से पॉजिटिवनेस हम भर सके उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमें जो भी रियल है वो हमें एक्सेप्ट करना है कि यही हमारा बॉडी है, और हम खराबी देखें, अच्छाई क्यों ना देखें हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी में बहुत सारी अच्छाई है जो मौजूद है, क्योंकि एक मोटा डांस भी कर सकता है, एक पतला डांस भी नहीं कर सकता। ये सबसे एक बड़ा एग्जांपल है। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पर कि एक चबी बॉडी वाला स्विमिंग कर रहा है लेकिन एक पतला है जो है वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। और अगर फिल्म स्टार में भी हम जाते हैं तो अजय देवगन हो गए और धनुष हो गए, वो इतने फिजिकली फिट नहीं है, ना इतने कलर कॉम्प्लेक्सन के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं आगे पीछे है, लेकिन वो सुपरस्टार है बिकॉज दे बिलीव ऑन सेल्फ। बिलीविंग ऑन सेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू ऑन दिस। आप अपने किसी स्टूडेंट को ऐसे थेरेपिस्ट के आप कहीं लेके गए हो, एक उन लोग के ऊपर कुछ बीता वैसा बॉडी शेमिंग के ऊपर? मैंने फिलहाल रिसेंट में 2 एक्टिविटी देखा था, एक हमारे मेंबर का जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा, और एक स्टूडेंट का भी। तो मेंबर का मैंने ये देखा था कि उसे बहुत सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना रहता था, लेकिन किधर ना किधर उसके मोटापन पे उसको कमेंट करके रोक दिया जाता था कि आप ये एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। या मजाक मजाक में भी बोलते, लेकिन कितना लोग सेंसिटिव रहते हैं, जो सेंसिटिवनेस की वजह से मेंबर धीरे धीरे बैकआउट करके एनजीओ से लीव हो गए। एक ये बुरा इफेक्ट कहीं ना कहीं हुआ। और डिप्रेशन में जाके उसके ऊपर पीसीओडी का भी जो था वो आ गया। डिप्रेशन की वजह से भी पीसीओडी और पीसीओएस होता है, तो वो मेंबर फिलहाल पीसीओडी पीसीओएस से सफरिंग कर रहा है। और एक स्टूडेंट भी मेरा अभी जो रिसेंटली, वो वी कैन से हिम ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, यस, बिकॉज ऑल ऑफ देम कॉल ब्लैक ब्यूटी, लेकिन वो एकदम पॉजिटिव वे में उसे लेता है। उसके ऊपर हाँ, बोलना ही नहीं चाहिए ना, वो लाइन उनको बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो जो है उसको इतने पॉजिटिव वे में लेता है, और उसकी वजह से सब उसे बोलना छोड़ दिया आज। तो मतलब वो उसका एक जो positive पॉजिटिव way में इम्पैक्ट लेके वजह से वो सब छोड़ते जा रहे धीरे धीरे। अच्छा। तो आपके ऊपर भी कभी कभी कुछ हुआ होगा पर्सनल, तो आपके दूसरे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपने फेस किए होंगे या देखे होंगे? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो कहीं ना कहीं मुझे 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में डांस एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट करने का वो रहता था क्रेज़, बट ड्यू टू बॉडी ज़्यादा था, मेरा वेट 109 kg था वो टाइम पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे निकाल देते थे। तो आपने भी पॉजिटिव वे में चेंज किया? So I consulted my Masi, which is not a physician or therapist, but there is a lot of positive energy in her. So उसने बहुत सारा गाइडेंस दिया, बहुत सारा मुझे सिखाया कि कैसे सोसाइटी से आपको डील करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में भी आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प होता है। और 3 साल में मैंने अप्रॉक्स 20 to 25 kg रिड्यूस किया वेट, और फिर इतना डांस एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया कि वो चलता ही आज चल ही रहा है। तो सबसे पहले तो मैं सोसाइटी को ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बॉडी शेमिंग है, जैसे आप कालेपन पे किसको जज कर रहे हो या गोरेपन पे किसको जज कर रहे हो या उसके बॉडी पे जज कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो एक गॉड गिफ्टेड है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सबको बॉडी एक तरीके से गॉड गिफ्टेड ही मिला है, सबको बॉडी एक तरीके से गॉड गिफ्टेड ही मिला है, और मेरी बॉडी गॉड गिफ्टेड है, ये सोच के हमें आगे बढ़ना है। और वेरियस एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि हम कॉलेजेस के साथ कैंप्स कंडक्ट कर सकते हैं इस पे, जिसमें हम कंसल्टेंट्स को बुला सकते हैं, थेरेपिस्ट को बुला सकते हैं। और मैं लोगों से यही चाहूँगा कि हम जितना हो सके दूसरे को कम ब्लेम करें, क्योंकि ब्लेमिंग का एक जो गेम चालू है सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है बॉडी शेमिंग पे। बॉडी शेमिंग एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हम अगर सुपरस्टार जैसे दिख रहे हैं तो हम सुपरस्टार है, वरना हम नॉर्मल पर्सन हैं, कुछ भी नहीं है। देखो, सुपरस्टार भी बॉलीवुड वाले जो हॉलीवुड को देखते हैं, बॉलीवुड वाले को हम देखते हैं, और फिर हम में से हम लोगों को अगर डिवाइड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सुपेरियरिटी आ जाएगा कि हम लोग पीछे हैं। So now we have Ms. Dipti out here from Happy Foundation. So hello Ms. Dipti. Hello. It's an honor to have you on board also. Thank you as so well. much. And we just have a few questions. We would like you to answer them. Yes. So what are your views and what do you think a body shaming society is perceived as? बॉडी शेमिंग एक बहुत ही छोटा टॉपिक बोल सकते हैं हम। इन अ बिगर वे यू कैन टेल के क्या होता है मालूम है, ऐसा सिर्फ मोटापा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है। लाइक जब भी हम डिलीवर होते हैं तब हम ब्लोट हो जाते हैं, एक अलग सा भारीपन आता है शरीर में, उसको आप शेमिंग बॉडी शेमिंग भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर उसके भी लोग रिलेट कर लेते हैं कि भाई आप ऐसे हो गए हो, आप वैसे हो गए हो। तो मैं इसके लिए बोलती हूँ कि एक औरत अपने पूरी जीवन शैली में अलग अलग स्टेजेस से गुज़रती है।
जब वो टीनेज रहती है तब उसको एक अलग वे पे सब चयन करना पड़ता है कि भाई आपको पतला दिखना है, आपको ऐसा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बॉडी शेमिंग। हाँ, अभी ये भी है कि जनरली जो बहुत मोटे रहते हैं, सच में मोटे रहते हैं, वो बाई चॉइस तो रहते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी वो नहीं, एवरीबडी वांट्स अ स्लिमर बॉडी, अच्छा एकदम। मैं भी चाहती हूँ कि मैं मोटी ना रहूँ, मैं जीन्स पहन सकूँ, वैसा सब रहता है। लेकिन क्या उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा? नेचुरली बिल्ड वैसे हुआ है, क्या कर सकते अभी उनका शरीर वैसा है, बांधा है। अभी हर कोई तो एकदम स्लिम एंड ट्रिम आपको नहीं मिलेगा, एवरीवन विल नॉट बी अ मॉडल। तो फिर जो जैसा है उसको आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो मोटी है या वो मोटा है, ये दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन लड़कियों पे ज़्यादा अमल किया जाता है। प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस में क्या होता है मालूम है कि लड़कों पे ज़्यादा इतना नहीं होता है, ठीक है वो मोटा है तो क्या हो गया, लड़की तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर लड़की मोटी है तो उसको लड़का नहीं मिलेगा। ये एक नॉर्म है हमारा सोसाइटी का, इसको हम चेंज करना चाहिए, इसको हम बेहतरीन एंड इन दिस मतलब ये पूरा सिनेरियो है ना, वो है ना इफ़ेक्ट करता है। क्या है मालूम है? आपके मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ पे क्यों इफ़ेक्ट करता है मालूम है? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कपड़ा खरीदी करने जाते हैं, जो मोटा रहता है वो पहले साइज़ देखता है, अगर नॉर्मल बंदा जाएगा ना तो वो प्राइस देखेगा। अगर मैं आप जाएंगे मार्केट में या मॉल में तो आप क्या करेंगे? आप प्राइस का टैग देखेंगे। लेकिन वो बंदा जाएगा ना तो वो साइज़ देखेगा, और उसके साइज़ का अगर नहीं मिल रहा है तो वो शॉपकीपर को अगर बोलता है कि मेरे पास ये कपड़े नहीं है, तो क्या हो जाता है, एक अलग सा, अरे मेरे पास ये साइज़ के कपड़े इनके पास नहीं है, कहाँ मिलेंगे? वो भी उसके पास नहीं है एड्रेस। क्यों? क्योंकि हम वैसे कपड़े रखते ही नहीं है। बहुत एक्सेल, डबल एक्सेल स्टोर्स बहुत कम है इंडिया में, जबकि आप यूएस, अमेरिका या कहीं पे भी जाएंगे ना तो देयर आर डिफरेंट स्टोर्स। यस, बच्चे जब आसपास में बैठते हैं ना तो पहले वहीं से शुरू हो जाता है, अरे तू मोटा है, अरे तू ये बेंच में फिट नहीं होगा। या तो क्या होता है मालूम है, हम ऑटो में जाते हैं तो 2 फीट होंगे, 3 फीट होंगे, ये एक बहुत बड़ा नॉर्म चलता है, अरे तू पीछे आ, तो तेरे लिए तो अलग से ऑटो करना पड़ेगा। ये हम एग्जाम्पल देते हैं, ये कॉलेजेस में बहुत चलता है। दूसरा कॉलेजेस में क्या चलता है मालूम है कि उस बंदे को थोड़ा अलग रखा जाता है। या फिर अगर आप होटल में जा रहे हैं, अरे तू तो बहुत खाएगा, लाइक ये हम जनरली बोलते बोलते बोल जाते हैं। और उसके हाँ, पर वो दूसरे वो उस दिन आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा अरे यार ये लोग मेरे को ऐसा चिढ़ाते हैं, मैं नहीं जाना चाहिए। वो पार्टीज़ में आना बंद कर देगा, वो आपके साथ आउटिंग्स पे नहीं आएगा, वो अकेला हो जाएगा। वो अकेला हो जाएगा तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा, और डिप्रेशन में जाने वाले बच्चे तुरंत मालूम नहीं पड़ते आज के ज़माने में। क्यों? हम क्या सोचते हैं, अरे वो तो मोबाइल में पड़ा है, वो तो लैपटॉप पे कुछ कर रहा है, ऐसा मतलब माँ बाप को भी नहीं मालूम पड़ता।